Okay, so our next topic is plastics. So this chapter is about synthetic fibers and plastics. We have completed synthetic fibers. Now we are going to do plastics. So plastics are not new for us. We use a large number of articles made of plastics in our day-to-day lives. Uh, for example, plastic bags or polythene bags, which are banned now. These are also known as single-use plastics. So single-use plastics harm the environment a lot. So that's why they are banned. Water bottles. Water bottles is your mineral water bottles. PET. We also know call it PET. Polyethylene terephthalate. I told you yesterday. Buckets, mugs, water tanks, water pipes, ballpoint pens, combs, toothbrush, toys, shoes, tea strainers, cups, plates, chairs, table, insulation of electric wires, covers of electrical switches, plugs, sockets, bulb holders, etc. These are all, or you can say few of the all plastic articles which we use in our day-to-day lives. Some parts of radio, television, refrigerator, car, buses, trucks, scooters, trains, aeroplanes, ships, spacecrafts are also made of various types of plastics. The list of things made by plastic and used in homes, transport, and industry is endless. Plastics articles are available in all possible shapes and sizes. So, what is plastic? The definition: a plastic is a synthetic material which can be molded or set into desired shape when soft and then hardened to produce a durable article. So plastic वर्ड का ही मीनिंग होता है ईजी टू मोल्ड. जब वो सॉफ्ट होता है उसको कोई भी डिजायर्ड शेप में मोल्ड करके हम लोग रख देते हैं एंड देन वी कैन यूज इट लेटर. Like synthetic fibers, plastics are also polymers. So plastics consist of very long molecules made by joining many small molecules together. The starting material for plastics are obtained from petroleum products, just like nylon, just like acrylic, just like polyester. Okay, called petrochemicals. We know that yesterday we have studied them. Some of the examples of plastics are polythene, the plastic bags, single-use plastic bags, polyvinyl chloride, PVC, bakelite, melamine, and Teflon. Nylon is also a plastic. कपड़े सुखाने की जो रस्सी होती है ना वो नायलॉन की होती है, वो भी प्लास्टिक ही है एक टाइप का. द मेजर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सम ऑफ द प्लास्टिक्स आर गिवन बिलो. Polythene. Polythene is a plastic obtained by polymerization of chemical compound known as ethene. एक केमिकल कंपाउंड होता है ईथीन, उसको जब पॉलीमराइज करते हैं, पॉलीमराइज मतलब ईथीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की एक लॉन्ग चेन बनाते हैं तो ईथीन का पॉलीमर बनता है, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन. और जब वो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीथीन. पॉलीथीन बैग्स, बेसिकली प्लास्टिक की जो बैग्स होती है, सब्जी खरीदने जाते हैं हम लोग, जो पतली सी बैग आती है जो भी बैंड हो गई है, दैट इज पॉलीथीन. पॉलीथीन इज टफ एंड ड्यूरेबल. Polythene is used in making polythene bags, waterproof plastic sheets, bottles, buckets and dustbins. Polythene is also used for packaging. ठीक है, सो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पॉलीथीन का पैकेजिंग में. पैकेजिंग में तुम्हारे फूड के कंटेनर से लेके फूड के रैपर से लेके सेलोटेप से लेके जितने भी पैकेजिंग के आर्टिकल्स है, सेलोफेन जो होता है जिसमें खाना फ्रेश रहता है, फ्रूट के ऊपर भी उसको रैप करते हैं, ये सब पॉलीथीन से बनता है. पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक नए टाइप का प्लास्टिक है. पहले टाइप, द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक वाज पॉलीथीन विच दे टोल्ड यू अबाउट. द सेकेंड टाइप इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC. इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड अनलाइक पॉलीथीन. पॉलीथीन स्ट्रॉन्ग और हार्ड नहीं होता है. इट इज ड्यूरेबल, it can be made tough, but PVC is much more stronger and harder.
It is not flexible as polythene. PVC is used for making insulation of electric wires. इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर जो प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है उसको पॉलीथीन बोलते हैं. पाइप्स, गार्डन होजेस. गार्डन होजेस मतलब जो पानी का पाइप होता है ना, जिससे हम लोग गार्डन में जिससे पानी देते हैं. तुम्हारे बिल्डिंग में भी तुमने देखा होगा ग्रीन कलर का एक पाइप होता है, ठीक है, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पीवीसी से बना होता है. रेन कोट्स पीवीसी से बनते हैं. सीट कवर्स एक्सेट्रा. सो दीज ऑल आर्टिकल्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक विच इज़ कॉमनली नोन एज पीवीसी और पॉलीविनाइल क्लोराइड. फिर एक दूसरा टाइप का प्लास्टिक है जिसको बोलते हैं बैकेलाइट. बैकेलाइट, इट इज़ वेरी हार्ड एंड टफ प्लास्टिक. Bakelite is poor conductor of heat and electricity. Bakelite is used for making handles of various cooking utensils such as frying pans and pressure cooker. तुमने देखा होगा प्रेशर कुकर के ऊपर ब्लैक कलर का एक हैंडल होता है या फ्राइंग पैन के ऊपर ब्लैक कलर का हैंडल होता है, वो बैकेलाइट से बनता है. ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का. Bakelite is used for making handles for cooking utensils because it is a poor conductor of heat. ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, why is bakelite used to make the handles of cooking utensils? Number 1, because it's a poor conductor of heat. Number 2, it does not become soft on getting heated. It is a thermosetting plastic. So thermosetting plastic याद रखना, एक बार thermosetting plastic का शेप मोल्ड कर दिया तो उसको कितनी भी हीट दे दो वो वापस मेल्ट नहीं होगा. एक बार वो सेट हो गया तो हो गया, फिर वो मेल्ट नहीं होता, वापस अपना शेप लूज नहीं करता है. रिमेंबर दैट. बैकेलाइट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स सच एज इलेक्ट्रिकल स्विचेस, प्लग्स एंड सॉकेट्स. तुमने घर पे स्विचेस हैं तुम्हारे, उसको ज़रा ऑब्जर्व करो. दे आर नॉट सॉफ्ट. ठीक है, दे आर नॉट सॉफ्ट, they are very hard. ठीक है, so yes तनुष. सर तो जो अगर जब ये मेल्ट हो जाते तो ये अपने फिर वही शेप में रहते हैं? नहीं, वो मेल्ट होते ही नहीं है. मेल्ट ही नहीं? नहीं, मेल्ट नहीं होते. एक बार वो सेट हो गए, हार्ड हो गए, तो फिर उनको कभी मेल्ट, मेल्ट नहीं होंगे? हाँ क्रैक हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, लेकिन वो मेल्ट नहीं होंगे वापस. मतलब मेल्ट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो अपना शेप लूज नहीं करते. सो दे डू नॉट मेल्ट. ये इनकी ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एक प्रॉपर्टी है, और बैकेलाइट ऐसा ही एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. ठीक है, तो तुम्हारे घर पे जो इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लग्स और सॉकेट्स है वो भी बैकेलाइट से बने हैं. बैकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लग्स एंड सॉकेट्स बिकॉज इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. उससे तुम्हें शॉक नहीं लगेगा बिकॉज इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटेड. ठीक है. मेलेमाइन. मेलेमाइन और एक टाइप का प्लास्टिक है विच कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स एंड रेजिस्ट फायर. इसके लिए मेलेमाइन का यूज होता है यूटेंसिल्स बनाने के लिए. मेलेमाइन इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, अनब्रेकेबल किचन वेयर्स, cups, plates, etc., ashtrays, fire resistant fabrics. Melamine is a fire resistant plastic. ये हीट को, मतलब इसको डायरेक्टली अगर तुमने गैस के ऊपर भी रख दिया तो भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. इट इज फायर रेजिस्टेंट. द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव अ कोटिंग ऑफ melamine plastic to make them fire resistant. Special plastic cookware made up of melamine is used इन माइक्रोवेव ovens फॉर कुकिंग फूड. तो माइक्रोवेव में तुम खाना गर्म करते हो ना, उसके लिए स्पेशल बर्तन होते हैं. याद रखना, माइक्रोवेव ओवन, सबके घर पे माइक्रोवेव है, बट नो वन यूजेस metallic plates or bowls to heat food in microwave. You should never try that. That is very dangerous because microwave में जो टेक्नोलॉजी है जिससे खाना गर्म होता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ होता है. और अगर तुमने स्टील की चीज़ को माइक्रोवेव में रखा तो सारे जो चार्जेस है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो सारे स्टील के बर्तन के ऊपर स्टोर हो जाएंगे. और जब तुम उसको टच करोगे स्टील के बर्तन को तो तुम्हें बहुत ही हैवी शॉक लगेगा. ठीक है, और ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है. सो नेवर यूज़
steel or metallic you can say utensils inside a microwave. Please remember that only special utensils which are coated with melamine can be used in the microwave. In microwave ovens, heat cooks the food but does not affect the plastic vessels, which are coated with melamine. Teflon और एक special plastic है on which oil and water do not stick. So you will see your frying pan it is a non-stick frying pan. ऐसा अगर तुम्हारी किचन में if you ask your mother, she will show you non-stick frying pan. It has a special coating on it which is known as Teflon coating. इसके ऊपर ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होते because it has a very slippery surface. Teflon also withstands high temperature. It is used for giving non-stick coating on cookwares like non-stick frying pans. Teflon is also used for making soles of electric irons. तुमने इलेक्ट्रिक आयंस को देखा होगा, नीचे उसके एक प्लास्टिक टाइप कोटिंग होता है. इट इज़ मेटल बट उसके ऊपर एक कोटिंग होता है. So that is to protect the clothes from sticking with the iron, because जब भी iron hot रहता है and if you put it on the clothes, some clothes they tend to stick to the iron, जैसे nylon के clothes हैं. But if it has Teflon coating, then it will not stick so much. Plastics are extensively used in healthcare industry. For example, plastics are used in the packing of tablets, for making syringes, doctor's gloves, threads for stitching wounds, and a number of medical instruments. ठीक है. So let us start with the types of plastics. दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट होते हैं. Whenever they are heated, they become hard again when they are cooled, and they can be molded into any desired shape, and you can actually heat it, melt it, and remold it into any desired shape you want multiple times. ठीक है. So इसका थर्मोप्लास्टिक का डेफिनेशन क्या है देखो. अ प्लास्टिक which can be softened repeatedly by heat and can be molded into different shapes again and again is called thermoplastic. Thermoplastic कैसे होते हैं? Flexible होते हैं. So they can be bent easily without breaking. Thermoplastics are also known as thermo-softening plastics. Some of the examples of thermoplastics are polythene and polyvinyl chloride (PVC). याद रखना thermoplastics जिसको हीट करके सॉफ्टन करके बार बार रिपीटेडली डिफरेंट शेप्स में हम मोल्ड कर सकते हैं. पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड. If we take a plastic bottle, polythene bottle basically, and add quite hot water in it, the plastic bottle gets deformed. Its shape changes and becomes irregular. This happens because bottle is made up of thermoplastic, which becomes soft on getting heated by hot water and changes shape. This activity shows that articles made of thermoplastics become soft on heating. प्लास्टिक बॉटल को तुम प्रेस भी कर सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स. वी फाइंड दैट प्लास्टिक बॉटल्स बेंड easily. This shows that article made of thermoplastics can bend easily. In other words, we can say that thermoplastics are flexible. In fact, thermoplastics are used for making those articles which do not get too hot and are flexible. थर्मोप्लास्टिक्स तभी यूज़ करना है तुम्हें जब तुम्हें कोई ऐसा आर्टिकल बनाना है जो ज़्यादा हॉट नहीं होता है. ठीक है, जिसको ज़्यादा हॉट कंडीशंस में यूज़ नहीं करना है और वो फ्लेक्सिबल भी होता है. ठीक है, तो किसके लिए यूज़ करते हैं थर्मोप्लास्टिक को? इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, केबल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक जार्स, कोम्स, टॉयज, प्लास्टिक बैग्स, रेनकोट्स, सीट कवर्स, ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस. ये हमने नाइलॉन में भी पढ़ा था, याद रखना. ठीक है. पैकेजिंग मटेरियल्स, चेयर्स, जो तुम्हारी प्लास्टिक की चेयर होती है वो भी थर्मोप्लास्टिक से बनती है. थर्मोप्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर बिकॉज
they do not conduct electricity, and they are flexible. Some of the articles or objects made by thermoplastics are shown here in this figure. These are all thermoplastics. If you hold these items now and if you apply little force on them, you will understand that they are practically soft and you can bend them easily. ठीक है, तो ये सब thermoplastic होते हैं. They are not hard, they are soft. Thermosetting plastic, they get soft only once, the first time they are heated after being made. पहली बार जब उसको बनाने के बाद हीट करते हो तुम और फिर कूल करते हो तो वो हमेशा के लिए हार्ड हो जाते हैं, एक शेप में फिक्स हो जाते हैं. When such plastics are heated for the first time, they become soft or melt and can be molded to make an article for any desired shape. On cooling, this article becomes very hard and rigid. When this plastic article is heated again, it does not become soft again, soft at all. A plastic which once set does not become soft on heating and cannot be molded a second time is called a thermosetting plastic. इसको बार बार तुम मोल्ड नहीं कर सकते, वंस, ओनली वंस. तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना हुआ मटेरियल या आर्टिकल ऐसा होता है कि एक बार उसने अपना शेप, ओरिजिनल शेप रिटेन कर लिया तो कभी वो लूज नहीं करेगा, परमानेंट वही शेप का रहेगा, इवन ऑन हीटिंग. तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो एग्जाम्पल हैं, बैकेलाइट और मेलेमाइन, जो अभी हमने पढ़ा था. Thermosetting plastics are hard and rigid. They are not flexible. Due to this, they cannot bend. बिल्कुल थर्मो सॉफ्टनिंग या थर्मोप्लास्टिक से बिल्कुल अलग है ये. When an article made of thermosetting plastic is forced to bend, it breaks. अगर ज़्यादा फोर्स करोगे टूट जाएगा, लेकिन ये बेंड नहीं होगा. If we take discarded electrical switch and put it in hot water for some time, it will not become soft because an electrical switch is made up of thermosetting plastic called bakelite. So this activity shows that thermosetting plastics do not become soft on heating. If we try to bend an electric switch by applying force of our hand, we find that it does not bend at all. If you apply more force, it will break, but it will not bend. So thermosetting plastics are used for making those articles which may get too hot during use. Electrical switches can get very hot during use because उसमें से electric current जो wire से pass करता है, that can give a lot of heat. तो ये हीट की वजह से स्विच का शेप चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाते हैं. तुम्हारा जो प्लग है वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनता है. ठीक है, फिर फ्लोर के कुछ टाइल्स होते हैं वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनते हैं. फ्राइंग पैन का हैंडल, सॉकेट, कुछ कुछ प्लास्टिक के कप्स एंड प्लेट्स होते हैं वो भी, और टेलीफोन, ये सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. मेलेमाइन के प्लेट्स है ये जो प्लेट्स दिख रहे हैं ना, दे आर स्पेशल प्लेट्स कॉल्ड मेलेमाइन प्लेट्स. तुम्हारे घर पे भी मेलेमाइन के अलग अलग प्लेट्स होंगे शायद. एक तो ग्लास के प्लेट्स होते हैं डिनर और लंच के जो प्लेट्स होते हैं, और एक मेलेमाइन के होते हैं. मेलेमाइन के जो प्लेट्स है उसमें गर्म खाना डालोगे तो वो सॉफ्ट नहीं होता है, वो एज इट इज़ रहता है. ठीक है, सो इससे कोई मुझे बता सकता है व्हाई इज इट एडवाइजेबल टू यूज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फॉर फ्राइंग पैन हैंडल? कैन एनीवन टेल मी? फ्राइंग पैन हैंडल में ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्यों यूज करते हैं? यस तनुष. इसलिए जब अगर आप पैन उठा रहे हो तो आपको जो हीट है वो उस पे नहीं आएगी, तो आपको ऐसे गर्म ना लगे आपके. Correct. So the right scientific terms to be used is, it is a bad conductor of heat. Right? It's a bad conductor of heat. दूसरा कोई reason? Anyone else want to try? राशि? आरवी? और कोई रीज़न? मैंने अभी बताया एक रीज़न. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक
हीट देने पे बेंड नहीं होते, मेल्ट नहीं होते, और वो मेल्ट नहीं होगे तो अपना शेप लूज़ नहीं करेंगे। और फ्राइंग पैन में सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हीट को रेजिस्ट करना है अपने को, है कि नहीं? फ्राइंग पैन में क्या करना है, हीट मस्ट बी रेजिस्टेड, क्योंकि वो तो सीधा सीधा गैस पे रखोगे तुम, फ्राइंग पैन हॉट हीट अप होगा, फिर उसका हैंडल हीट अप होगा, और हैंडल हीट अप होने से वो जो तुम्हारा उसके ऊपर का जो हैंडल के ऊपर का जो कवर है बैकेलाइट का, वो भी हीट होगा। लेकिन अगर वो हीट हुआ और वो थर्मोप्लास्टिक के से बना हुआ होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, एंड दैट विल एक्चुअली बी वेरी डेंजरस। तो मेल्ट नहीं होना चाहिए, मेल्ट नहीं होना चाहिए तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए फ्राइंग पैन का हैंडल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बनाते हैं, बिकॉज दो रीज़न है, एक तो इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट डज नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग। स्विचेस क्यों बनाते हैं बैकेलाइट से, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से? Again, it does not melt due to heating. Why there is heat? Because whenever electric current is passed through a conductor, it produces some amount of heat. So switches should not melt. Thermosetting plastic do not melt, and that's why they are made from, switches are made from bakelite, which is thermosetting. Second, it is bad conductor of electricity. You will not get shock when you handle the switch. You do not get shock because switches are bad conductor and thermosetting plastic is bad conductor of heat, ठीक है। अच्छा, टूथब्रश को थर्मोसेटिंग से क्यों नहीं बनाते? टूथब्रश के ब्रिसल्स को थर्मोसेटिंग से क्यों नहीं बनाते? सर क्योंकि वो ब्रिसल्स हमारे दांत में जाता है और फिर पानी लग सकता है। हाँ ठीक है ना, क्योंकि जो ब्रिसल्स होने चाहिए बहुत फ्लेक्सिबल होने चाहिए, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, द ब्रिसल्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट, ब्रिसल्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट। देखो पानी दोनों को लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों प्लास्टिक हैं, दे आर वाटर रेजिस्टेंट, बट सॉफ्ट प्लास्टिक कौन सा है? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सॉफ्ट नहीं है, उससे ब्रिसल्स बना ही नहीं सकते तुम, क्योंकि वो हार्ड है। उससे अगर ब्रिसल्स बनाने की कोशिश भी करोगे, इफ़ यू पुट इट ऑन योर टीथ एंड गम्स, दे विल ब्लीड, यू विल गेट इंजर्ड बैडली, ठीक है। सो बिकॉज दे आर नॉट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, टूथब्रश ब्रिसल्स आर नेवर मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। सो थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक्स दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी का है, दैट इज द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस and the ability to regain different shapes on heating or retain its original shape despite heating. That is the only, you can say, the major difference between both the plastics, ठीक है। अच्छा, इनमें फ़र्क क्या है, ये दिखते कैसे हैं? ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। तुम्हें ये लेफ्ट वाला फिगर दिख रहा है, फिगर नंबर 9A, ये वाला फिगर, इसमें ये डिफरेंट है कि जो ऊपर वाला रो और नीचे वाला रो है, एक में ज्वाइन हो रहा है और एक में नहीं। हाँ, मतलब यहाँ पे ये जो तुम बोल रहे हो ना, ऊपर और नीचे वाले रो के बीच का जो ज्वाइन, उसको बोलते हैं क्रॉस लिंक। सो थर्मोप्लास्टिक में देर आर नो क्रॉस लिंक्स। इफ देर आर नो क्रॉस लिंक्स, दैट मीन्स दे विल बी सॉफ्ट, दे विल बिहेव in a way that they are soft and they on heating they can change their shapes, ठीक है। so thermoplastics are basically soft because of absence of cross links, but अगर thermosetting plastic देखोगे, वहाँ पे सब में हर एक रो के पॉलीमर में, पॉलीमर चेन के इंडिविजुअल मोनोमर के बीच में क्रॉस लिंक्स है, और ये क्रॉस लिंक उनको स्ट्रेंथ देती है, उनको हार्ड बनाती है, ठीक है। सो क्रॉस लिंक की वजह से दे आर वेरी वेरी हार्ड टू चेंज देयर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप्स, ठीक है। सो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के स्ट्रक्चर के बीच में, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बीच में क्रॉस लिंक का होना, ठीक है, क्रॉस लिंक का प्रेजेंस या एब्सेंस। प्लास्टिक की यूजफुल प्रॉपर्टीज़ देखो, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस।
प्लास्टिक्स आर यू कैन से 20th सेंचुरी के प्रोडक्ट है ये, 20th सेंचुरी के प्रोडक्ट्स है प्लास्टिक्स, ठीक है। मतलब पिछले 100 साल में प्लास्टिक का यूज़ बहुत बढ़ गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि प्लास्टिक के जो यू कैन से एडवांटेजेस है वो बहुत ज़्यादा है ओवर अदर मटेरियल्स, ठीक है। ये एडवांटेजेस मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। डिसएडवांटेजेस हम सबको पता है, बट एटलीस्ट वी शुड नो फॉर राइटिंग आंसर्स कि हमें कैसे लिखना है। प्लास्टिक इज केमिकली अनरिएक्टिव। प्लास्टिक में तुम पानी भर के रखो, तुम फूड भर के रखो, केमिकल भर के रखो, कुछ भी भर के रखो, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एयर वाटर के साथ तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं। अदर मेटल्स, अदर कंटेनर्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस, वुड ले लो, मेटल ले लो, दे ऑल रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर, ठीक है। उस सब में कोरोजन होता है, प्लास्टिक में कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वेदर, दे आर अनअफेक्टेड बाय वेरियस केमिकल्स, एसिड्स, बेसिस, कोई इफेक्ट नहीं करता उन पर, ठीक है। इसलिए तुम उसमें दुनिया भर की चीज़ें रख सकते हो, बिकॉज इट इज़ नॉट अफेक्टेड, अनअफेक्टेड बाय, केमिकली अनरिएक्टिव एंड अनअफेक्टेड बाय मोस्ट ऑफ द मटीरियल्स। फिर दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर्स है ये, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे व्हेन वी आर हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स विच हैज़ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू देम, और handling objects which are very very hot, we require plastics because they are insulators, they do not conduct heat and electricity, so they make objects, you can say dangerous objects, easy to handle, ठीक है। so safety level इस पे ज़्यादा है प्लास्टिक में। they can be molded into different shapes, तो large variety of articles बना सकते हैं, छोटे से छोटे आर्टिकल से लेके बड़े से बड़े आर्टिकल तक, टॉयज से लेके द मोस्ट useful articles which are in your homes, in your kitchen, all are made, can be made by plastics because they can be molded into different shapes. but ये एक ही टाइप का प्लास्टिक है which can be molded into different shape, that is thermoplastic. Thermosetting plastic can also be molded into different shape but only once, not again and again, ठीक है। so दोनों को हम मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग को सिर्फ एक ही बार मोल्ड कर सकते हैं। देन प्लास्टिक्स आर क्वाइट चीप एंड ईजिली मेड। हर घर में प्लास्टिक का यूज़ इतना प्रिविलेंट क्यों है? बिकॉज दे आर वेरी चीप, वेरी ईजिली मेड। प्लास्टिक फैक्ट्रीज आर वेरी कॉमन एंड दे कैन बी, you can say, you can obtain plastics for any normal shop plastic articles. They are light, strong and durable. इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है प्लास्टिक आर्टिकल्स की, लाइट वेट भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, ईजिली टूटते नहीं, ईजिली ख़राब नहीं होते हैं। सो जस्ट इमेजिन, एक तो प्राइस कम है, ऊपर से इतना लंबा चलता है ये, सो इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, चीप, राइट? दैट्स वाई जस्ट इमेजिन प्लास्टिक का यूज़ तुम्हारे घर से लेके स्पेस क्राफ्ट तक सारी चीज़ों में होता है, बिकॉज ऑफ द लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल properties. But then comes the disadvantage associated with plastics. See, there are some plastics which can be reused again and again, but then there are some other kinds of plastics which are not environmental friendly, and despite the fact that they can be reused again and again, more and more plastic is being produced in factories and is, you can say, dumped into the market, which we, the end user, the customer, end up exploiting. तो वो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज जितना ज़्यादा प्लास्टिक हमारे अराउंड होगा, प्लास्टिक बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल, ईजिली डिस्ट्रॉय करना उसको मुश्किल है, ठीक है। तो इतना सारा प्लास्टिक अब वेस्ट में जमा हो गया है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और वो कहीं भी इट इज़ नॉट गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड बाय इटसेल्फ, डिग्रेडेड बाय इटसेल्फ। बैक्टीरिया भी उसको डिग्रेड नहीं कर सकते। प्लास्टिक का जो एक आर्टिकल है, इट टेक्स अराउंड 400 years टू डीकम्पोज, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। आई कैन गूगल इट एंड चेक, मैं ये फैक्ट तुम्हें बताता हूँ। प्लास्टिक
decompose time 450 हाई years. रहता है 450 years, that's what Google tells me. ठीक है, सो 450 years लगता है एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में. जस्ट इमेजिन 100 years से प्लास्टिक बन रहा है और इतना सारा मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक्स ऑलरेडी बना दिया है ह्यूमंस ने. और अगर वो अभी 100 years पहले भी किसी ने डिकम्पोज किया होगा अभी तक वो जमीन के अंदर ही पड़ा होगा. एग्जैक्टली माई पॉइंट. अभी भी उसका डिकम्पोजिशन शुरू भी नहीं हुआ है. तो जस्ट इमेजिन इतना सारा प्लास्टिक है ज़मीन में तो है ही नहीं, हमारे किचन में हमारे घर पे कितना सारा है. तो इसलिए गवर्नमेंट अभी प्लास्टिक को बैन करने के लिए दे आर रनिंग ऑल द कैंपेन्स. ठीक है, सो सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं यूज़ होना चाहिए, जो पॉलीथीन की बैग्स होती है. इसलिए हम लोग जब सब्जी लेने जाते हैं तो हम अपनी बैग कैरी करते हैं. या फिर एक पर्टिकुलर टाइप का प्लास्टिक आता है वो हमें यूज़ करना चाहिए विच इज़ रीयूजेबल, रिसाइकलेबल. ऐसे प्लास्टिक को जमा करके उसको रिसाइकल करके फिर से उससे नए प्रोडक्ट बना सकते हैं. ठीक है, फिर प्लास्टिक से और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो गई है. दे मेक रोड्स आउट ऑफ प्लास्टिक चंक्स. रोड, तुम्हारा जो रोड है ना उसमें जो टार होता है विच इज़ अ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, उसके साथ प्लास्टिक को मिक्स करके रोड बनाते हैं एंड द रोड इज़ वेरी ड्यूरेबल. तो ऐसे करके प्लास्टिक्स के अलग अलग यूजेस को उसमें हम लोग रख रहे हैं ताकि ये जो वेस्ट है प्लास्टिक का वो मैनेज हो सके. बिकॉज द वे वी आर यूजिंग दिस प्लास्टिक इज अनइमेजिनेबल. सो वी हैव टू समहाउ think and stop using plastic products so much. मैंने अभी recently, I'm just going out of the topic, but this is related to the topic. I just don't want to read the chapter because that doesn't make sense. You will get bored. So recently मैंने notice किया, I think some months back, I went to play cricket with my friends. And that was you can say some kind of tournament. So they play in that turf. You know turf, right? हाँ, तो turf में tournament खेल रहे थे. And what they do is they play every weekend, every Sunday उनका game रहता है. तो I was invited there. So when I went there, I saw that they took a huge crate of plastic bottles, mineral water bottles. तो जैसे ही बीच में टाइम मिलता है सब लोग एक एक बॉटल लेके, छोटी छोटी बॉटल्स पी के यहीं पे फेंक देते हैं. एंड बाय द एंड ऑफ द मैच देयर वर अराउंड 50-60 bottles, empty bottles lying. Now I found it very unnecessary and I did not drink from there. And then I told my friend that this could be avoided. Because अगर सब लोग अपने घर से एक बॉटल लेके आते हैं और उसको पी के खुद लेके जाते हैं वापस, तो ये सारी बॉटल्स को मैन्युफैक्चर करने का जितना भी एनर्जी, रिसोर्सेस, वो सब सेव हो जाता. अब ये सारी बॉटल्स को हमें रिसाइकल करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लास्टिक के यूज़ को बढ़ावा दे रहे हैं. सो वी हैव टू स्टॉप दैट सम हाउ. तो कुछ डिसीजंस तो हमें ही लेने पड़ेंगे. जहाँ भी तुम्हें लग रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है ये प्लास्टिक का यूज़, यहाँ पे मैं क्लॉथ की बैग को यूज़ कर सकता हूँ या फिर कुछ और यूज़ कर सकता हूँ. डू इट. डू नॉट अननेसेसरीली यूज़ प्लास्टिक. यस तनुष, यू वांट टू से समथिंग? Sir, if you are bringing small plastic bottles, better bring a home bottle of steel or anything. Exactly. A big bottle so that you can drink for yourself. That's what I thought. Okay, there is no need of doing this unnecessary thing. Everybody can bring a bottle from their home and drink from it. इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग environment के लिए. So there comes this last topic which is biodegradable and non-biodegradable materials. Actually ये थोड़ा सा बायोलॉजी का टॉपिक है. बायोडिग्रेडेबल मटेरियल खुद ही डिकम्पोज होते हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन सॉइल. बट नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, they are not environmental friendly because they cannot be decomposed easily. पेपर बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है. मेटल्स बायोडिग्रेडेबल इतने नहीं हैं. ठीक है, बट मेटल्स वैसे ही हमारे पास इतने कम हैं कि मेटल्स पल्यूट नहीं करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को. प्लास्टिक्स दे कैन पल्यूट टू अ ग्रेट लेवल.
ठीक है, सो दैट शुड बी स्टॉप्ड। तो तुम्हारे घर पे एक सिस्टम अभी होगा, तुम्हारे डस्टबिन में 2 बैग्स होंगे, ड्राई एंड वेट है तुम्हारे, तुम लोग फॉलो करते हो ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट? प्लीज़ फॉलो दैट, बिकॉज ड्राई वेस्ट में क्या होता है, मोस्टली प्लास्टिक आर्टिकल्स और दूसरा वेस्ट होता है, और वेट में सिर्फ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, बचा हुआ खाना, फ्रूट के पील्स, वेजिटेबल्स का जो वेस्ट होता है तो वो सब अलग से हम लोग उसको कंपोस्ट बना सकते हैं उसका। बट जो ड्राई होता है दैट इज़ मोस्टली रिसाइकलेबल थिंग्स, सो वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड सेपरेटली, ये तुम्हें फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी सेम चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें बताया था। प्लास्टिक जनरली लोग, क्योंकि वो वेस्ट है एक बार यूज़ करने के बाद, तो जनरली लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, इससे एनवायरनमेंट और सराउंडिंग पोल्यूशन होता है। फिर स्यूवर्स जो होते हैं ना, तुम्हारे ड्रेन्स और स्यूवर्स, वो क्लॉग हो जाते हैं। तो बारिश में तुम देखते हो पानी भर जाता है कुछ एरिया में, पानी इसलिए भरता है क्योंकि स्यूवर सारी क्लॉग हो गई है। वो क्लॉग मतलब कैसे ब्लॉक हो जाती है, बिकॉज प्लास्टिक वहाँ पे जमा हो जाता है। ये सब प्लास्टिक की वजह से होता है, उससे बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट होती है। फिर एनिमल्स जैसे काउज है, वो भी कभी कभी प्लास्टिक खा लेते हैं, और पूरे उनके बॉडी के अंदर वो प्लास्टिक पॉइजन क्रिएट करके फिर वो उनकी डेथ हो जाती है। दैट इज़ वेरी वेरी बैड। व्हेन प्लास्टिक, अच्छा कुछ लोग ट्राई करते हैं कि प्लास्टिक को जला दें, अगर बर्न करोगे तो और डेंजरस है, बिकॉज उससे पॉइजनस गैसेस एमिट होती है जो एयर को पोल्यूट करते हैं और उससे रेस्पिरेटरी डिसीजेस क्रिएट होते हैं। तो यू शुड नॉट बर्न द प्लास्टिक। सो डिस्पोजल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्लास्टिक के लिए, डिस्पोज कैसे करें इसको। सो सबसे बेस्ट है इसमें जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो तरीका है, यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप दिया है, दैट इज़ वी शुड रिड्यूस और मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स बाय यूजिंग अदर मटेरियल्स इन देयर प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड यूज़ बैग मेड अप ऑफ कॉटन क्लॉथ or jute for shopping instead of polythene bags. Paper bags can also be used. Stainless steel lunchbox can be used instead of plastic lunchbox. We should not throw polythene bags, wrappers of chips, biscuits, and other eatable in water bodies, on roads or in parks or picnic places. The used plastic material should be put in the dustbins provided at various public places. This will keep our surrounding clean and also prevent the blockage of dirty water, drains and sewers. We should reuse the plastic containers which comes with jams, pickles, oils and other packed food material for storing salt, spices, tea leaves, sugar in the kitchen. मतलब ये जितने भी प्लास्टिक के कंटेनर है ना, तुम उसको किचन में यूज़ कर सकते हो स्टोर करने के लिए चीज़ें, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास प्लास्टिक बैग आ जाती है तो उसको शॉपिंग के लिए ये रीयूज़ करो बार बार। और अगर प्लास्टिक का वेस्ट है, बिल्कुल काम का नहीं है वो, तो उसको रिसाइकल करो, ठीक है। सो कुछ गार्बेज कलेक्टर्स या फिर जो तुम्हारे रद्दी वाले जो होते हैं वो भी प्लास्टिक खरीदते हैं, उनको तुम दे दोगे, वो डायरेक्टली रिसाइकलिंग से फैक्ट्रीज में उसको बेच देंगे और वहाँ पे फिर से उसको नए प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। सो थर्मोप्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं कर सकते। सो मेन है 3 R's को फॉलो करना है तुम्हें टू सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक। 3 R's आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस मीन्स कम से कम यूज़ करो प्लास्टिक का, रीयूज वापस यूज़ करो अगर यूज़ कर लिया है तो, और रिसाइकल करो उसको। वेस्ट मत क्रिएट करो प्लास्टिक का, दैट इज़ द ओनली वे we can save our environment from excessive use and you can say harmful effect of the pollution created by plastic, right? So that was your chapter. The chapter is over and छोटा सा पार्ट था आज का, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट अब जो इसका एक्सरसाइज है वो थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस है जो कल तुमने नहीं किए थे फ्रॉम द PDF which I sent you already, they are all your homework. So all the questions which are not marked are your homework. ये जो हॉट्स है वो भी ट्राई कर सकते हो,
दे आर सिंपल, नॉट वेरी डिफिकल्ट, ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। एक बात याद रखो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तुम्हारे माइंड में। जब स्कूल की एग्ज़ाम या मैं टेस्ट लूँगा तो तुम्हें इतना रिविजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर। ठीक है, सो दैट वाज योर चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। अब नेक्स्ट वीक में हम लोग करने वाले हैं मैथ्स। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।